value that I could play 1% or 0.5% that I can take for his success today, which sort of having a discussion, those things got evolved and eventually what we see is. So after about 5-7 years of experience, he decided to get into training part-time so that he can share the knowledge. That is how he can increase the knowledge, and he joined his father's business with a massive start, giving a touch of innovation, getting into new processes, new way of doing business, and already have taken the business to probably 2 times, 2.5 times in just a small span of probably 18 months or so. So ladies and gentlemen, put your hands together and let me welcome none other than the most passionate, talented, enthusiastic, handsome, Piyush Pandey. Trade is the second best innovation of the mankind. Because it's that one that is very difficult. After that, everything becomes easy. आप whenever you enter somewhere, कोई भी चीज़ आपने start की अपने life में, be it cooking, be it a business, be it dancing, be it singing, could be any random thing. The first time you do it, or the first 100 times you do it, that's not the right time to judge your potential, because that's the learning phase, that's the learning curve. उसमें आपसे बहुत सारे mistake होगी, बहुत बार आपको bore होगा, बहुत बार आपको अकेला महसूस होगा. As he rightly pointed out, a lot of people, you don't have to have a bunch of friends or bunch of people जिनके पास आप reach out करो, but in your life there has to be someone to whom you can just go and just talk. I'm stuck here, I need this help, I want to work on things like that. Now, as you know, today's topic is business model canvas. I just want to ask you guys, what do you understand by canvas? Canvas ये word तो सुना होगा कभी ना कभी. Yes. What do you understand by that? What is canvas? Let's make it an interactive session, otherwise मजा नहीं आएगा. Diagram chart. Diagram chart, okay. Painting. Canvas is like a painting. Right. So basically canvas क्या होता है? वो जो एक ऐसा box होता है जिसमें आप paint करते हैं. Yes. So idea of a canvas is आपके दिमाग में कोई एक image है. कुछ तो आपने सोचा है जो बाकी लोग देख नहीं पाते. Like if I ask him, आप आज तक कहाँ पे गई, कोई एक जगह जहाँ आप घूमने गए? Any one place where you have gone to visit, could be Mumbai, could be out of Mumbai. Gateway of India गए, ठीक है? In a room full of people who have never been to Gateway of India, this guy can stand up and talk about Gateway of India. He can express and he can tell you whatever he saw. But human mind का एक और इकलौता छोटा सा limitation है, और वो ये है कि जो चीज उसने देखी नहीं आज तक, वो उसको imagine नहीं कर पाता. Why is it that कि अगर मैं आपको बोलूँ Earth, so एक black space में से एक blue Earth दिखता हुआ image सबके दिमाग में पॉप आउट हो रहा है, क्योंकि वही टीवी पे देखते हैं, right? When I say moon, there is an image of a moon whenever you must have seen. When I say China, अगर आप चाइना गए तो ठीक है, अगर आप चाइना नहीं गए तो closest thing to China which I ever seen, अगर आप कोई anime fan हो तो कोई कार्टून सीरीज होगा, कुछ नहीं होगा तो एक आपका लोकल चाइनीज स्टॉल होगा जो आपके दिमाग में आ जाएगा, because you have got China. So that's the problem and that's the basic limitation of a human man. I feel that is the only limitation which you have. कि आपने जो चीज देखी, अभी मैं aliens बोलूँ तो वही दो बड़े आंख वाला एक creature जो अलग सा दिख रहा है, right? No one has seen it. So आपने जो देखा है आपको वही याद है. So the idea of a canvas is to put out things जो आप देख पा रहे हो और लोग नहीं देख पा रहे. And when you put that thing out, and everyone can see it, everyone can understand the beauty of it, right? अभी जैसे for example, he said Gateway of India. अगर उसके जगह पे वो कोई एक सीनरी होता, या बाहुबली मूवी देखिए आप लोग ने, वहाँ पे एक वाटरफॉल है, एक सीन है बीच में वाटरफॉल है. Now if assume करो किसी ने वो वाटरफॉल नहीं देखा या वो मूवी नहीं देखी है, they cannot express or understand the beauty of it. आप भले उसको कितना भी अच्छे से express करो, but it is possible that the beauty may not reach out to people. So the idea of a canvas is to put out your idea, which everyone can see and understand, and then basis on that they get the beauty or the insight of it, right? तो पेंटिंग यही होता है. एक पेंटर है, उसके दिमाग में एक थॉट है, उसको कुछ दिख रहा है जो आप इमेजिन नहीं कर पा रहे. जैसे मोनालिसा का पहले किसी ने मोनालिसा को इमेजिन ही नहीं किया. Now it is one of the craziest, most expensive painting on planet Earth. So business model canvas का मतलब क्या होता है? हर business का एक मॉडल होता है. मॉडल का मतलब मैं वो खूबसूरत सी लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ. Every business model means an idea or a trajectory.
अभी जैसे आपके कॉलेज के बाहर एक चाय वाले की दुकान है, ठीक है, ये चाय वाला, वहां पे एक ईटरी भी है, ठीक है, बाजू में उसके बहुत सारे स्नैक्स भी है, राइट? डू यू थिंक दिस गाय हैज अ बिजनेस मॉडल? Anyone? Yes, no? Yes, right? Yes. There is no business which can, survive without a business model. Maybe subconsciously वो चाय वाले को पता भी नहीं होगा कि उसका एक business model है, but there is a business model. Business model का basic मतलब क्या होता है? आपका business काम किस तरीके से करता है? अभी जैसे बहुत सारे लोगों ने agree किया with प्रथमेश की, you must have got an idea in the past and you saw and you're like, okay, I thought about this, right? But आपने क्या चीज नहीं किया उसके बाद? You did not work on it. Work on it how? Let's say I tell you आपको चाय की दुकान खोलनी है, ठीक है? What are things you need? What are things you need? Anyone keep popping. Place. You need a place. Raw materials. You need raw materials, okay? Labor. You need Labor. labor, okay? Location. You need place, location, okay? Favorable location. हाँ? Favorable location. Favorable location, place में डन हो गया, और Investment. रॉ मटेरियल हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, और चाय बनाने के लिए गैस तो चाहिए ना, कढ़ाई चाहिए जिसमें चाय बनेगा, वो चाहिए, चाय बनाने आनी रॉ चाहिए। मटेरियल्स, चाय बनाने का रॉ मटेरियल्स एंड प्रोसेस का रॉ मटेरियल्स आर डिफरेंट, राइट? फॉर दैट गाय इट्स हिज फैक्ट्री, राइट? वो चाय बनाने का गैस जब तक नहीं होगा उसका काम नहीं चलेगा। फॉर अ बिग टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब तक एक बड़ा बर्नर नहीं होगा उसका काम नहीं चलेगा, राइट? नाउ यू माइट थिंक क्या है, वो तो बोल दिया रॉ मटेरियल्स में आ गया, ऐसा नहीं है। So business के models में every small element matters. Like there was a very good case, Harvard के case study में भी आया हुआ है. An event management company started its business and first business उसको बहुत अच्छा मिल गया, but they lost that business and उसके बाद उनको probably कुछ business मिला नहीं market में because they arranged a big event in Rajasthan and वहाँ पे almost कुछ 2000 लोगों का gathering था and they did everything which could have been right. You name the cuisine, they had the cuisine. You name the style of entrance, they had done that. जो बेस्ट पॉसिबल था वो इवेंट एजेंसी ने सब किया, बट वो इवेंट एजेंसी ने पानी लाना भूल गया, तो उस इवेंट के टाइम पे वहां पे पानी नहीं था। नाउ दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग व्हिच यू डोंट थिंक अबाउट, बट अगर आप एक इवेंट मैनेज कर रहे हो, सो दैट स्मॉल थिंग जस्ट डिसरप्टेड एवरीथिंग। सो आपका एक बिजनेस मॉडल कैनवा जो होता है, बेसिकली वो उस पिक्चर को आप डिनोट कर रहे हो, जो मैंने आपको गेटवे का एग्जांपल दिया। जैसे आपने गेटवे का फोटो बनाया या ड्राइंग किया, उस तरीके से आप अपने बिजनेस को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द एस्पेक्ट्स एंड बेस्ड ऑन दोस एस्पेक्ट्स यू प्लान कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है। नाउ फर्स्ट थिंग इज अ प्लान डिस्क्राइबिंग हाउ बिजनेस इंटेंड्स टू मेक मनी। एनीवन और ऑफ यू जो ये सोचता है कि पैसा मैटर नहीं करता है, आप लोग का ये थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। पैसा मैटर करता है, उसको कैसे आप यूज करते हो वो आपके ऊपर है। आपके पास बहुत पैसा, आप कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हो, दैट्स योर प्रॉब्लम। वो पैसे का प्रॉब्लम नहीं है। आपके जेब में 100 करोड़ आज आ गए और कल आप पूरे पैसे उड़ा दो लास वेगास में जाके, तो वो आपकी गलती है। पैसे ने आपको नहीं बोला कि जाके गलत काम करो। सेकंड, दुनिया में आपको अच्छा भी काम करना है तो उसके लिए पैसे चाहिए। सपोज आई एम नॉट डूइंग वेल, मैं रास्ते पे रहता हूँ, आप रोज आके मेरे साथ बात करते हो, मेरे को अच्छा लगेगा, बट थर्ड डे आएंगे लाइक ब्रो कुछ खाने का तो दे दे, तेरा बात करना क्या है। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको किसी की हेल्प भी करनी है तो पैसे की जरूरत है, आपको किसी के लिए अच्छा भी करना है तो पैसे की जरूरत है। एंड द मोस्ट गिविंग पीपल आर गिविंग हाउ? विद द हेल्प ऑफ देयर मनी, राइट? आपको अगर किसी स्लम एरिया को डेवलप कराना है, किसी की मदद करनी है, तो आप उसकी पैसे से मदद कर सकते हो, उसके लिए कमाना जरूरी है। तो ये माइंडसेट के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल आप बिजनेस में घुस ही नहीं सकते कि पैसे की जरूरत नहीं होती, because पैसा इज इम्पोर्टेंट। Now, how your business is going to make money, that is important. Because creativity could be anything, innovation could be anything. उससे पैसा बनेगा कि नहीं वो समझना जरूरी है। That is how that is why you enter the business. Second, explain who your customer base is and how your delivery value to them and related details of financing. Now, अगर एक आपका business है, this is your business, ठीक है? इसमें आपके साथ कितने aspects है? First of all, your vendors, जिनके थ्रू आप सामान खरीदोगे, योर क्लाइंट, जिनको आप सामान बेचोगे। ये दो एंगल जो है वो एकदम सिंपल दिख रहा है, कहीं से आप कुछ खरीदोगे, अपने पास प्रोसेस करोगे एंड देन यू सेल इट, बट देयर आर टन्स ऑफ थिंग्स इन बिटवीन जिसके बारे में आप नहीं सोचोगे। यहाँ पे आपका लेबर आ जाएगा, ठीक है? अब लेबर में सब आ गया, आपका लोअर मैनेजमेंट, अपर मैनेजमेंट, एवरीवन इज अ पार्ट ऑफ इट। आपको टैक्सेस पे करने हैं बिकॉज़ आप एक कंट्री में रहते हो तो वहाँ पे टैक्स पे करना जरूरी है, राइट?
Now, as a business, if you are ready to work every week, every day, throughout, right? मेरे को रात को 12 बजे भी फोन आ गया तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता. It's not my working hour because it's my business. Every hour is my working hour, right? After working every minute of your day, when you get money, you have to first pay this guy. Okay? Then you have to pay this guy. Then you have to pay this guy. Sometimes आपको इनको second pay करना पड़ेगा, इनको third pay करोगे तो भी चलेगा. Because इनके वगैरह का काम नहीं होता. Right? And after doing everything, अगर जो कुछ छोटा सा हिस्सा बचता है वो आप डे 1 पे आप 100 करोड़ नहीं कमाओगे. डे 1 पे आपका प्रॉफिट एकदम अनलिमिटेड नहीं होगा. So are you ready to get in an environment जहाँ पे पूरा दिन काम करने के बाद जो पैसा आ रहा है उससे पहले लोगों को पैसा देना है? एंड अगर कुछ नहीं बचेगा तो सर उठा के फिर भी चलते रहना उस चीज पे, कंटिन्यू करते रहना उस चीज को जब तक वो पैसा बचना चालू ना हो जाए जो आपके लिए हो. If you can do that, then you can do a business. Otherwise, you can't do a business. It's not cozy, it's not lush. वो देखने में लगता है lush, वो lush नहीं है. But that's the point, right? अगर आप वहाँ पे अपने हाथ गंदे करने उतरे ही हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं. You see a politician today, you feel अरे वो गाड़ी में घूम रहा है, उसके पीछे 6 गाड़ी है. बट आपने वो उसके पहले की 1000 रैलियां भी देखी है जहाँ पे वो बस से चल के पहुंचा है वहाँ पे गधे ऐसा काम किया है पूरा दिन, नेता के पीछे आगे भागते रहा है, and then somehow has got a ticket. Right? Everyone sees that end. वो start नहीं रहता. उसी तरीके से whenever you start a business, ये सारे aspect को manage करना is important. Can you put your idea on this canvas? That is the basic idea of it. क्या आप अपने मॉडल्स को इस तरीके से रन कर सकते हो कि सारे एस्पेक्ट के बारे में आप सोच रहे हो. लाइक अगर रन स्मॉल क्लाउड किचन, अब वो एक छोटा सा क्लाउड किचन है नंदेरी. अब उसके लिए मेरे को वेंडर्स से लेके क्लाइंट से लेके एक छोटा चीज जैसे माचिस होता है उसके बारे में सोचना होगा. उतने छोटे से बिजनेस में देयर आर 10 हेड्स. 10 हेड्स इन द सेंस 10 फैक्टर्स इसके बारे में मेरे को कॉन्स्टेंटली सोचना पड़ता है. अदरवाइज एक भी अगर चैनल प्रॉपर्ली नहीं चल रहा तो काम नहीं होगा. इट्स लाइक अ फुल ऑयल इंजन जो कितने बार लोन लोगे. अगर इंस्टेंट लोन चलो मिल भी जाता तो लोन इज एट 30% 15%, राइट? तो अपनी शर्म को नीचे रख के आपको अपने किसी नजदीकी के पास जाके बोलना पड़ेगा कि वो आई नीड. एंड वो नजदीकी भी शायद ऐसा हो सकता है अगर अच्छा हो उसने दे दिया और कुछ नहीं बोला तो अच्छी बात है. मे बी ही कैन टॉन्ट यू एंड उसमें उसकी कुछ गलती नहीं है बिकॉज़ दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, राइट? सो आर यू रेडी टू डू ऑल दैट थिंग्स? Are you getting my point? People don't understand that's the part of the process. It's not all lush, you know, आप उठ के चले गए गाड़ी में बैठे ऑफिस गए, वो बहुत दूर है. Decades बाद है, आज कुछ नहीं है, आज उसको टाइम है. Are you getting my point? A strategic management tool that lets you visualize and assess your business idea and concept. Basically आपने जो सोचा वो वर्कआउट हो सकता है. जैसे मैंने बोला it's a decade long process. Today you imagine that आपको एक चाय का स्टॉल लगाना है. And then you plan that down the line 5 years you want to open 100 outlets throughout Mumbai, right? For every outlet, how much are you ready to spend? For a place probably आप 15,000 to 20,000 तो जाओगे because थोड़ा बैठने की जगह चाहिए, लोग वहाँ पे बैठ के गपशप कर सकें. Let's be honest, चाय की दुकान में बहुत सारे smokers भी आते हैं तो उनके लिए कुछ आपको options रख सकते हो तो they might come here. It's just business ideas है. अगर एक आउटलेट पे आप 15,000 to 20,000 का रेंट पकड़ के चल रहे हो तो उसको एक डिपॉजिट देना पड़ेगा आपको, नहीं बोल के भी 60,000 to 1 lakh rupees का. And then you pay monthly rent. Then there has to be one guy who's making it, probably 2 अगर आपका दुकान अच्छा चल रहा है. And then you have to do it to 100. This is just the cost of the place, right? अभी तक तो आपने सामान का कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, उसमें क्या लॉस होगा, कुछ दिन बिकेगा ही नहीं, कुछ दिन दूध ज्यादा फट गया आपका, कुछ भी हो सकता है. तो मैं डे 1 में नहीं सोच सकता ना कि मैं आपके पास आऊं कि मेरे पास ये आइडिया है, आप मेरे को 100 करोड़ रुपए दे दो और मैं चालू कर दूंगा. ऐसा नहीं होता. Why will someone invest in you, right? So that's a decade long plan. वो प्लान को विजुअलाइज करने के लिए जरूरी है कि आपके पास कैनवस में वो प्लान हो. And then you understand, okay, what is the first step, what is the next step, what is the next step. And that is how you move ahead. And उस प्रोसेस में गलती नहीं होगी ऐसा नहीं है. गलती होगा उस प्रोसेस में, but then you rectify it through the process. But just because you have a plan ready, आपके पास एक डायरेक्शन है, राइट? You guys are doing your MBA for some reason. Some might have a job idea because they want to do a job. Some might be interested in a particular field, marketing पढ़ना था, finance पढ़ना था, समझना था. Maybe you want to start your own business, but then you thought, okay, ठीक है, मैं पहले पढ़ लेता हूँ समझता हूँ. If there is a plan, then it's okay. But if you don't know the next step, वो पूरा हेवा हो जाता है. आपको पता नहीं है क्या करना है.
You don't know how you're going to survive next period. आगे क्या होने वाला है. So for that very reason, this is very important. भले वो आगे जाके बहुत बार चेंज हो, बहुत बार उसमें स्क्रैप करना पड़े और वापस बनाना पड़े, बट ये होना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद ये काम नहीं होगा. वो विजुअलाइजेशन जो है वो नहीं होगा. It beats the traditional business plan that spans across several pages by offering a much easier way to understand different core elements of business. It's just a way of understanding ease. मतलब मैं बुक में भी लिख सकता हूँ, हर चीज को मैं बुक के एक पेज पे हर पेज पे डेडिकेट करके लिख सकता हूँ, but that presentation becomes a bit difficult. Rather, if you put it in that chart which will be coming ahead, you understand all the aspects on the single platform, and उसके बाद आप उसका correlation and how things are working and where you are at which stage you are, you can understand everything. The right side of the canvas focuses on the customer or the market, while the left side of the canvas focuses on the business. Now I give you one example. Why is it that a chocolate like Pulse comes into your market and it takes over 30% of the market in just 1 year? But बाकी दूसरा बहुत सारे products हैं market में. Mango Bite भी था पहले, ऐसा तो है नहीं कि chocolate वैसा कुछ था ही नहीं, आपके पास वैसे कोई candy भी नहीं है ऐसा. Mango Bite था, then they had Kaccha Mango Bite, right? But why is it that a candy named Pulse comes into the market? Slightly different. And Pulse के ऊपर आज आप सर्च करोगे तो 10,000 कॉपी कैट है इसके. Pulse, Beats, ये वो फलान ढिमका everything. And that one candy came in and 30% market captured the place. I understand. So there is a concept जो इसमें डबल नहीं होता है. ये आपका ओशन है फॉर एग्जांपल, ठीक है. This is the Red Sea and this is the Blue Sea. अब ये Red Sea is infested with big sharks, great whites, probably crocodiles, octopus, stingray, jellyfish. वो पूरा भरा हुआ है. Now if you are forced to jump here, will you jump here? अच्छा, ऑप्शन में सुन लो. Blue Sea is in normal water. कुछ जो है ज़्यादा वेव्स नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पत्थर भी नहीं है, probably you will not hit your head and die there. It's normal chilled water, ठीक है. Whereas यहाँ पे नमक का पानी भी हो सकता है, बड़ी बड़ी मच्छी भी है, जान का खतरा है, everything. Will you jump here? No. Problem with people is everyone jumps here. This is a business idea. Business market में business market जो है आपका वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. One is the Red Sea, already existing businesses. जो business ideas already surviving, existing है in the market. But the problem is there are options for that thing, right? अब अगर आपको आज एक South Indian food खाना खाने का मन हो रहा है, तो आप लोकल रेस्टोरेंट में जाओगे, उसके पास भी ऑप्शन है. एक ऑथेंटिक में चले जाओगे, उसके पास भी ऑप्शन है. Then you search online and you figure out there are 25 options जो बोल रहे हैं कि मैं ही ऑथेंटिक हूँ और कोई ऑथेंटिक भी नहीं है, right? Still there are options, tons of options, right? अब वो Red Sea हो गया, because there are already existing players in that market. Business ने अपना सारा margins expire कर दिया. Now the only way to get into it is आप अपना product जितना सस्ते में बेच सकते हो बेचो, तो people will come to you. That's called the Red Sea, the space where there are a lot of sharks and you won't survive. And then this is called the Blue Sea, the idea which never existed before. Right? Before Steve Jobs, there was no touchscreen phones, so he was in the Blue Sea. Why is that? Apple has always been in a Blue Sea for a very long time, and वो अभी तक उसको enjoy कर रहा है and it will be enjoying it for quite a few years also. But eventually it might get into the Red Sea because now it is not innovating anything or doing nothing new. Right? Facebook at the time was in the Blue Sea. किसी ने नहीं किया, किसी ने सोचा. Swiggy, Zomato at their time were in Blue Sea. आज सोचने में भी आपके पास बहुत सारा. So आपका आइडिया कौन सी कैटेगरी में वो समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड ये समझना क्यों जरूरी है? बिकॉज इसके बेसिस पे आपके कस्टमर रिटेंशन और कस्टमर के बारे में आप सोच सकते हो. अगर आप एक चाय वाले हो, राइट, तो आपके पास वो लक्ष्य नहीं है कि आप अपनी चाय 2000 रुपए में बेचो. अंटिल अनलेस यू आर ताज और सब. ताज बनने में भी जमाना लगेगा. अगर आप एक चाय वाले हो, आप अपनी चाय 15 रुपए में बेच रहे हो, तो पीपल विल बी लाइक अरे वो एप्लीकेशन माता है अच्छी मिलती है 6 रुपए में. नहीं बैठना उसको, वो खड़े रह के भी ले नहीं बैठना उसको. बोलेगा उसके बाजू में टपरी है, वहां से मैं सिगरेट ले लूंगा, वहीं पे मैं खड़े रह के मेरे को नहीं आता. आप 1 बस का दे दो उसको, उसको नहीं चाहिए 1 बस का.
बोल रहा है मैं खड़े खड़े चाय पी लूंगा, मेरे को कोई मसला नहीं, नीचे मैं कहीं और खा। नाउ दैट्स अ रेड सी। वहां पे आप कस्टमर को कैसे पुल कर रहे हो, दोस आइडियाज आर टोटली डिफरेंट। वेयर इज ब्लू सी, व्हाई इज इट दैट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम डोंट चार्ज यू एनीथिंग? कभी सोचा, कभी भी ऐसा थॉट आया कि क्यों ऐसा है? मतलब नेटफ्लिक्स देखना है तो भी पैसा भरना पड़ता है, कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है तो पैसा भरना पड़ता है, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है आपको, हेल्थीफाई नहीं हो या कुछ भी, आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। जोमेटो भी चीप डिलीवरी तब देता है जब जोमेटो गोल्ड लेता है, बट फेसबुक इंस्टाग्राम आपको कभी चार्ज ही नहीं करता, यूट्यूब कभी चार्ज ही नहीं करता आपको। यूट्यूब से ज्यादा कंटेंट कहीं पे भी नहीं आता। व्हाई इज दैट? कभी सोचा? बिकॉज़ यू आर द प्रोडक्ट व्हिच आर बीइंग सोल्ड। आप कस्टमर नहीं हो उसके, आप प्रोडक्ट हो उसके। The number of views there are present at every hour on these platforms, that is the way they decide marketing companies को कितना charge करना है for advertising. Are you getting it? Think ना, influencers make almost around 3 to 4 lakhs a month videos बनाने। अगर there is an entity which is paying a person to make videos 3 to 4 lakhs, खुद के ही फोन से बना रहा है, वो खुद ही कर रहा है, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर मैं उस चीज के लिए उसको 3 से 4 लाख रुपए दे सकता हूँ, तो वो कितना बना रहा होगा तब उसको 3-4 लाख रुपए देगा। तो आप वो सोचते नहीं हो, प्रॉब्लम हुआ है, वो है ही नहीं, गायब हो गया है या था, बुझ गया है, आई डोंट नो। व्हाई इज दैट Jio is giving you free IPL? Because Disney Hotstar का सारा स्टेक ले लिया ना उसने अभी। लास्ट ईयर Hotstar was the official person। अगर एक साथ 4 लोगों को भी देखना है तो 1500 का सब्सक्रिप्शन है फॉर अ ईयर। सबसे सस्ता भी है तो 140 या 160, आई डोंट नो, समथिंग लाइक दैट। इट्स गिविंग यू फॉर फ्री। HBO का भी सब्सक्रिप्शन है, वही कर रहा है ना वो। आपको Jio फ्री में क्यों दिया सिम कार्ड? उसके पास वो पैसा था, यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड, उसके पास वो पैसा बर्न करने का कैपेसिटी था, आपके मेरे पास नहीं है। बट व्हाई इट गिव्स यू फॉर फ्री? बिकॉज़ पूरा मार्केट ले लिया ना उसने। सो व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिजनेस मार्केट में आपका कस्टमर लोगे कैसे, वो डिसाइड होता है आप कहां पे हो। ही वाज इन द रेड सी, बट वो एक सबमरीन में बैठा हुआ था जिसमें बहुत सारे पैसे है उसके पास। तो शार्क से उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, उसने साल भर दे दिया फ्री। 40% मार्केट साल भर में किसी कंपनी ने टेक ओवर नहीं किया। इफ यू गो अब्रॉड, इंडिया इज द चीपेस्ट प्लेस फॉर इंटरनेट। आप दुबई चले जाओ, $100 का, यहाँ के हिसाब से $100 का 1 GB मिलता है। इंडिया इज द चीपेस्ट, आपको फर्क भी नहीं पड़ता, फोन चालू करके छोड़ देता हूं। आई लिव्ड इन दैट टाइम व्हेन यू कुछ टेस्ट ही नहीं, या तो बहुत तीखा होगा या तो ब्लैक होगा, वो और कोई टेस्ट ही नहीं होगा, नहीं चाहिए। अगर आप एक ईटरी ऐसे खोल रहे हो एंड देन यू डोंट अंडरस्टैंड आप किसको टारगेट कर रहे हो, सर्वाइव नहीं कर सकते। कस्टमर सेगमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेगमेंट इज सुपर इंपॉर्टेंट। आप किसको फोकस करने वाले हो, बिकॉज़ दैट इज हाउ योर स्ट्रेटजी विल बी क्रिएटेड इवेंचुअली। आप BMW बेचने जा रहे हो तो आप उसका ऐड नहीं कर रहे हो। डू यू नो, आपको पता नहीं होगा, आई शेयर इट विद यू, a lot of sales people at Louis Vuitton, Zara तो बहुत चीप हो गया, Louis Vuitton हो गया, Gucci हो गया, इनका लोअर पर के मॉल्स में आउटलेट है। उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि इन अ सटल वे दे हैव टू मेक यू फील कि आप ये बाय नहीं कर सकते। जनरली क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है कि मैं आपको बोल रहा हूँ ना दैट यू हैव टू बी गुड टू द कस्टमर्स, यू हैव टू बी नाइस टू देम, आप अपनी बात सुनती रहेंगे। मैकडॉनल्ड्स में ये ट्रेनिंग होता है, आप उनको गाली भी दोगे तो भी आपको थैंक यू सर, नमस्ते सर वो बोलते रहे, नमस्ते सर हमें हेल्प यू, उसके बगैर वो आपको ऑर्डर ले ही नहीं सकते। 40 लोग लाइन में तो हर किसी को बोलेगा, उसका वो इनबिल्ट है। इन लुई वुइटन और प्रोबब्ली गुची, प्राडा, उनको बोला जाता है कि आपको कस्टमर को एक स्लाइट हिंट देना दैट यू आर नॉट गोइंग, आपके बजट में नहीं बैठेगा। मतलब बेसिकली वो आदमी ने आपको देख के जज किया, and trust me, that's the strategy through which they have sold it to this category, the middle category. Because जो rich है उसको फर्क नहीं पड़ता, जो rich है वो आता है, वो प्राइस नहीं पूछता, वो देखता है नो ओके गुड डन, तो वो उनको मालूम है उनके साथ तामझाम नहीं करना। ये कैटेगरी को इंसाइट करना इज वेरी इजी। Why is it that people who can't afford iPhone want to buy iPhone? 20,000 की पगार है आपकी, आप 70,000 लाख रुपए का फोन ले लो, 3 साल तक EMI भर रहे हो, बट आपको लेके घूम रहे हैं और उससे आपका कोई इमेज बिल्ड नहीं हो रहा, आपको लग रहा है दैट ग्रेटिफिकेशन इज व्हाट यू आर गेटिंग। दिस इज कॉल्ड द ब्लैक कम्युनिटी माइंडसेट। ये रेसिस्ट नहीं है, वो यूएस में ऐसा कॉन्सेप्ट है।
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दिस इज अ सेइंग, जैसे जो ब्लैक पीपल है, as soon as they become rapper or singer or whatever, the first thing they do is they want to buy a Mercedes, and that में भी उनको डायमंड चाहिए और गले में सोने का चेन चाहिए. This is called a black people mentality. कि आपको ब्लिंग दिखाना है. क्यों ऐसा वो वॉरेन बुफे नॉर्मल कपड़े में चल रहा है, मार्क ज़करबर्ग चड्डी में चला जाता ऑफिस. There are times when Jeff Bezos have taken his board meetings in pajamas. मतलब एक white t-shirt और pajama. That's it. तो उनको शोकेस नहीं करना, आपको शोकेस करना. And this trick has always worked on this category because आप बुरा जल्दी मान लेते हो. You get offended very quickly. क्या मैं नहीं खरीद सकता? सीधा आप क्रेडिट कार्ड और दोगे भी क्रेडिट कार्ड. ऐसा नहीं है आप कैश में खरीदो. ऐसा नहीं है कि आप कैश में खरीदो. आप दे रहे क्रेडिट कार्ड ही उसको. फिर वो क्रेडिट कार्ड वाले को फोन करके उसका ईएमआई करवाओगे आप. राइट? बट आप दूसरे में खरीद लो. दिस इज आल्सो सेल्स टेक्निक. हर जगह पे हर स्टैंडर्ड में अलग चीज का मतलब है. बट उसके लिए आपको सेगमेंट समझना जरूरी है. सेगमेंट समझना सबसे ज्यादा जरूरी है. सेकंड इज कस्टमर रिलेशन. वो 111 देखिए कंफ्यूज मत हो, वो मेरे टीम में उसने मुझे गलत किया. नंबरिंग रॉन्ग है उसका. वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सेकंड इज कस्टमर रिलेशनशिप. व्हाई इज कस्टमर रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट? कस्टमर रिलेशनशिप अगर नहीं हो तो फिर बनता है. Exactly. Customer relation is as equal to customer retention, and you have to understand. ये बहुत बार सुना भी होगा. आपका 20% क्लाइंटेल आपका 80% बिजनेस देता है, और आपका बाकी 80% क्लाइंटेल आपको सिर्फ 20% बिजनेस देता है. I'll give you my business का example. So I went to interior designing, real estate development, construction, civil work, property acquire करके उसको पूरा furnish करने का सारा काम. And we do B2B. B2B मतलब business to business. Individuals के साथ काम हम बहुत. वो कुछ सिलेक्ट करेंगे फिर बोलेंगे अरे ये तो मैंने बोला ही नहीं था. You don't have time. And businesses they buy used properties at one time. Good morning. यहाँ पे I have 3 clients. UBI, SBI, RBI. बैंक से पैन इंडिया प्रॉपर्टीज बाय करती रहती है, तो उनको हमारी जरूरत पड़ती रहती है. These 3 give me 95% of my annual income. 95%. 3 ही क्लाइंट. इसके अलावा मेरी लिस्ट में 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, बट ये 3 मेरे को मेरे साल का 95% बिजनेस देते हैं. तो मेरे को दुनिया में कहीं से नहीं काम मिला. बट अगर यहाँ से मेरे को बुलाया जा रहा है तो आई विल गो हियर ओनली बिकॉज़ ये नंबर मैटर करता है. नहीं, दूसरा जो आएगा वो चला जाएगा, वो शायद कल नहीं भी जाएगा, बट ये 30 साल से हमारे पास. तो आई कैन नॉट लीव दैट. कस्टमर रिलेशन इसके इम्पोर्टेंट. द रेपिटेटिव कस्टमर गिव्स यू मोर बिजनेस. उसके लिए आपको उसको क्रेडिट भी देना पड़ेगा, शायद उसका 2 बार शायद सुन के भी लेना पड़ेगा. But that person will not choose you over someone else. वो आपके पास ही रहेगा. Channels. Now channel क्यों important है? What do you understand by channels? Anyone? What do you understand by channels? It's a medium. Channel is a medium, correct? और see whenever you do a business, अभी जैसे आपने कोई बिल्डिंग खड़ा कर दिया, ये आपका बिल्डिंग खड़ा हो गया, वो अपने आप बिकेगा नहीं. So when the realtors, they create a building, they hire different people. Hire क्या onboard करते हैं, and they give them certain tasks कि आपको ये बेचना है, इसका इतना % आपकी सकती है. Those are called channel partners. Directly you are not selling it, जैसे उनके सेल्स टीम को बेच ही रहे, but there are some other people who are also trying to sell it. अगर उनसे बिक गया तो आप उनको % दे दोगे rather giving it to your sales team. So that's your channel, that's a medium जो आपको help करेगा. It is not there on day one. चैनल कभी भी डे 1 पे नहीं बिल्ड होगा, क्योंकि चैनल आपके नाम पे बिल्ड होगा. आपका नाम जब तक क्रिएट ही नहीं होगा तो वो क्यों आपके साथ काम करना चाहेगा, राइट? बट दैट इज आल्सो अ गुड थिंग. रेवेन्यू स्ट्रीम्स इज इंपॉर्टेंट. नाउ रेवेन्यू स्ट्रीम 2 टाइप का होता है, वो हम लोग आगे समझेंगे. बट व्हाई इज इट दैट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट? 199 का फॉर एग्जांपल अगर सब्सक्रिप्शन है, अगर आप कहीं पे मूवी देखने जाओ तो 199 की कोई मूवी भी नहीं है, still you get a subscription for 199. How is it possible? Because उसके आपके कितना आप सब्सक्रिप्शन दे रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो रेपिटेशन से फर्क पड़ता है.
अगर 199 मेरे को एक आदमी दे रहा है इन इंडिया एंड मेरा इंडिया में फुटबॉल इज ऑफ 10 लाख, तो मैं महीने का कितना कमाऊंगा? 199 into 1 लाख, वो तो पता होगा ना तुम लोगों को। अरे बताओ कितना होता है? मेरे को क्या देख रहे हो? 199 into 1 lakh, 199 lakhs। क्या है? कितना है? Exactly 199 lakhs Indian terms में कितना है? 1 crore 99 lakhs आपका बिजनेस। गाइस ये सब बेसिक टर्म्स हैं, तुम लोगों को ये सब कैलकुलेशन दिमाग में होना चाहिए, तुम लोग कैलसी मत करो इसको, ठीक है? अब उसका 2 करोड़ का एक इनकम है जो फिक्स होगी, जो उसको आना ही है। अब उसके बाद आपसे वो क्या सेल करवाता है, दैट इज डिफरेंट। सब्सक्रिप्शन मॉडल इसलिए इंपॉर्टेंट है। जोमेटो बोल रही है आपके सब्सक्रिप्शन से फर्क नहीं पड़ता, बट दैट्स एन एडेड इनकम फॉर यू। थोड़ा वो जो प्रॉफिट वो आपको प्राइस कम देगा, वो होटल वाले से ही जाने वाला है, उसको क्या पता। सो रेवेन्यू स्ट्रीम्स डेवलप करना, इट्स नॉट जस्ट वन सिंगल सोर्स जहां से पैसा आ रहा है, बिकॉज़ वो सोर्स बंद हो गया तो खत्म हो जाता है। एंड आपके ऊपर इतने सारे लोग हैं जो डिपेंडेंट है, आपको सबको देना है। तो स्ट्रीम कैसे डेवलप कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। की एक्टिविटीज, एवरी बिजनेस इज सेल टन्स ऑफ थिंग्स, बट कुछ चीजें होती है जो उसका फेमस है। जैसे गोदरेज है, गोदरेज से आपको क्या दिमाग का लॉक कबाड़ हो गया। गोदरेज आपका इंस्टॉलेशन भी करता है, बहुत कुछ करता है, वो आपका इंटीरियर डिजाइनिंग भी करता है, बट गोदरेज बोला तो कबाड़ याद आता है, क्योंकि उसने उसे पेनिट्रेट किया है। बजाज बोला तो चेतक याद आता है, वो पुराना सा स्कूटर, जब स्कूटर एग्जिस्ट भी नहीं करता था उस टाइम पे स्कूटर। एवरी कंपनी, एवरी बिजनेस हैज अ की प्रोडक्ट। जैसे मैंने आपको स्ट्रीम बताया क्लाइंट का, वैसे स्ट्रीम होता है प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट होगा जो शायद आपको 30-40 से लेके प्रोबेबली 60-70% तक भी बेच रहा होगा, आपका रेवेन्यू उससे आता है, बाकी सब स्प्लिट है। तो वो की एक्टिविटी जो है उसको भी आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा ना, आप उसको रैंडमली फेंक नहीं सकते, उसके ऊपर फोकस नहीं करो, ऐसा नहीं। की रिसोर्सेज कौन सी चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो समझना पड़ेगा। लाइक इफ यू गाइस रीड न्यूज़पेपर डे बिफोर yesterday only, Mukesh Ambani gave his right hand man, some Modi, I forgot his name, 1500 crores का नेपेंसी रोड पे 22 स्टोरी बिल्डिंग गिफ्ट किया उसको। He is his right hand man। मतलब अगर मुकेश अंबानी ऑफिस में नहीं प्रेजेंट है और मोदी ने कुछ बोल दिया, नॉट आर नरेंद्र मोदी, आई एम टॉकिंग मुकेश मोदी जो उसका राइट हैंड मैन, इफ ही सेज समथिंग वही होता है। He is the second in command। मतलब आकाश अंबानी का कितना नहीं चलता जितना उसका चलता है। He is there for the last 20 years। Now he is a key resource। He is not an employee, he is a key resource। उसके ऊपर डिपेंडेंट है बिजनेस। तो आपको वो फैक्टर समझना पड़ेगा। कुछ वेंडर्स होते हैं आपके लिए वैसे जो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ वो आपको ऐसे टाइम पे भी प्रोडक्ट दे देते हैं विदाउट आस्किंग एनी मनी, दैट्स इट। कुछ आपके लेबरर्स होते हैं जो आपके लिए काम करते हैं, तो आपको वो फैक्टर्स को समझना पड़ेगा जो इंपॉर्टेंट है। की पार्टनर्स, उसमें आपके वेंडर्स, आपका सीए भी हो सकता है, आपका अकाउंटेंट हो सकता है, आपका प्रोबब्ली आईटी बंदा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है आपकी कंपनी का वो समझना है। ये पेन जो बनता है ये कितने में मिलता है? 20-50 रुपए का मिलता है। एक पेन बनाने का कॉस्ट कितना है? अब जब वो कॉस्ट आप लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग किया होगा, कॉमर्स वाले आए हो, सो यू हैव डन इट राइट। जब आप यू डू कॉस्ट अकाउंटिंग, तो एक पेन बनाने के लिए कितना कॉस्ट आता है? तो यू इंक्लूड एवरीथिंग, ऑल द ओवरहेड्स, फिक्स्ड आल्सो, वेरिएबल आल्सो, you do everything, all the checkups, everything is done, सब कैलकुलेट करके पता चलता है कि एक पेन बनाने में, so when I say this pen cost 20 rupees, 20 rupees of everything which I am using, factory भी, office भी, everything, that is important। and value proposition, बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करते वक्त ये नहीं समझते, बट वैल्यू प्रोपोजिशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। वैल्यू प्रोपोजिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाट वैल्यू यू आर प्रोवाइडिंग टू द कस्टमर। सिमिलर प्रोडक्ट को तो भी, रेपिटेटिव प्रोडक्ट को तो भी, एकदम ब्रांड न्यू प्रोडक्ट को तो भी, वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है आपका? वैल्यू प्रोपोजिशन से आपको क्या समझना है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वैल्यू प्रोपोजिशन? तो वैल्यू प्रोपोजिशन या आपकी कंपनी की वैल्यू हो सकती है, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू हो सकती है। नहीं वो तो है, मैं बोल रहा हूँ वैल्यू प्रोपोजिशन, इससे आपको क्या समझना है? उससे मालूम पड़ता है कि मेरा आगे आते आपने ईएमआई सब पे कर दिया आपके, फिर आप चले गए खाने, आपने पिछले महीने कुछ सोचा था खरीदने का, आपने खरीद लिया, गिनती के 5-6 हजार रुपए जेब में बचेगी, ट्रैवल करना है, ये करना है, वो करना है, बस यू कांट सर्वाइव विद दैट। आपके पास जो भी पैसे आएंगे तो आपको पहले लोगों को देना है, अगर कम पड़ रहे तो आपको अरेंज करके लोगों को देना है। हाँ, आपको अरेंज करके लोगों को देना।
अब समटाइम्स बैंक का है ना, सबसे बड़ा एक ही डाउनफॉल है, पेमेंट कभी कभी स्लो हो जाता है। बैंकिंग गवर्नमेंट बैंक तो पैसा डूबेगा नहीं, पैसा नहीं डूबेगा ऑफ कोर्स, बट एज गवर्नमेंट के साथ आपको काम करना है तो प्रॉब्लम दो चीज है। पहला, जो चीज 100 में मिलती है मार्केट में टॉप क्वालिटी, वो सेम टॉप क्वालिटी उनको 50 में चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट उसको इतना चीज चलाना है, वो आपको उड़ा उड़ा के पैसे नहीं दे सकते। लोगों लगता है गवर्नमेंट वाले कुछ नहीं मिलता। सर तो अपने को मार्केट का एक्चुअल रेट तो मिलेगा नहीं, उससे भी कम करना। अरे मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, आपने ये 50 का बेचा, ये 20 में बना, 30 में भी प्रॉफिट में होगा ना, बट आपने बोला 50, आपको देख के 4 और लोगों ने बनाना चालू किया पेन 50 में, तो अब आप 30 रुपए एक पेन पे कमाओ। गवर्नमेंट बोल रही है कमा, बट 20 ही कमा, 15 ही कमा, 30 मत कमा। Are you getting my point? Now that entity can give you business throughout India every day. कोई सिंगल डे नहीं जहाँ पे उधर काम नहीं होता। किसी दिन होगा कि एक चेयर ही बना के दे रहा है, हमको ये एक चेयर ही दे रहा है, एक चेयर रिपेयर कर, किसी दिन होगा वो फ्लोर तोड़ के नया फ्लोर बना रहा है, किसी दिन होगा केबिन बना रहा है, किसी दिन होगा इसको चेंज, काम साइमल्टेनियस चल रहा है। तो आपको कहाँ पे मार्जिन रिड्यूस करना है वो समझना पड़ेगा। जो चीज 100 की मिलती है मार्केट में, वो उसका कॉस्ट 90 रुपीस नहीं है। यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको जो कौन सा मार्केट है जहाँ पे रास्ते में कपड़ा मिलता है? फैशन स्ट्रीट। फैशन स्ट्रीट में आप जो कपड़ा 300 में खरीदते हो, उसमें भी वो प्रॉफिट मार्जिन 200% है उसमें, उसका कॉस्ट 100 रुपए ही है। आप सूरत चले जाओगे, सूरत के डॉक पे 5000 रुपया किलो कपड़ा मिलता है, 5000 रुपया किलो कपड़ा मिलता है। उस किलो में 500 से 600 शर्ट आ जाते हैं। आउट ऑफ फैशन हो सकता है, इन फैशन हो सकता है, वो आपका गैम्बल है। क्या निकलेगा वो आपका गैम्बल है। डॉग का सेल का यही है, क्या निकलेगा वो आपका गैम्बल है, उनको पता नहीं होता क्या है, एंड दैट इज व्हाई दे गेट द राइट टू सेल इट। बस इतना पता होता है बॉम्ब बॉम्ब नहीं है उसमें, बाकी क्या निकलेगा, कैसा कपड़ा निकलेगा वो आपके। 500 शर्ट अगर मैं 5000 में खरीद रहा हूं तो एक शर्ट कितने का होगा बताओ? कितने का? 10 रुपए का एक शर्ट पड़ा। मैंने 100 में भी बेचा तो भी 90 रुपए एक शर्ट। तो वो इसलिए वो बोल रही कि तुम 50 रुपए दे, 50 में दे 40 ही का। Are you getting it? Now कभी कभार कैसा होता है, उनका पेमेंट, कोई नया चेयरमैन आ गया, कुछ आ गया, तो थोड़ा साइकिल चेंज हो जाता है। बैंक का नया चेयरमैन आया, उसने सब नया नया रूल बना दिया। गवर्नमेंट बैंक के कुछ आप बोल नहीं सकते, और आप काम नहीं करोगे तो 10 लोग खड़े काम करने। लेट मी बी क्लियर हियर, आप वहां पे ये नहीं बोल सकते हो ऐसा लड़ना होता है तो बोलेगा जा, ऐसा नहीं होता है तो जा, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, राइट? बैंक में भी हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, काम करने करोगे तो जाओ, तो पैसा आपका अटक जाता है। अब 2 महीने आपको पेमेंट नहीं आया, वो 2 महीने में आपको काम तो करवाते ही रहना। नया काम जो आ रहा है उसको आप मना नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपने नहीं बोला, उस मोमेंट में किसी और ने हाँ बोल दिया, अब वो एंटर हो गए। अब अगर उसने अच्छा काम कर दिया है तो नेक्स्ट फोन उसको जा रहा है, फिर आपको फोन मिल जा रहा है। कोई सगा नहीं है मार्केट में आपको, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सर्विस का बात। थर्ड, बैंक में कोई भी काम हार्ड एंड फास्ट होता है। ये रूम अगर रीडेकोरेट करने के लिए जनरली 15 दिन लगता है ना, तो बैंक आपको 5 ही दिन दे सकती है, क्योंकि किसी का ट्रांसफर होके वो आ रहा है, उसको मालूम नहीं था, तो 5वें दिन पे उसको ऑफिस में बैठना है। वो किसी बैंक को ईडी वीडी आ रहा है, वो बड़ा ऑफिसर लेवल का आदमी है, आप उसको तो नहीं रुका सकते ना किसी साइड में बैठो। गवर्नमेंट और प्राइवेट में वो भी थोड़ा डिफरेंट है, वहां पे थोड़ा ट्रीटमेंट वो वाला है, राजा वाला है। वो आ रहा है तो उसके लिए पूरा ऑफिस रीडेकोर होगा। अब 15 दिन का काम 5 दिन में करना है, 50% कम में करना है, और पैसा कम मिलेगा उसका गारंटी नहीं। करना है तो आप कर सकते हो, करो, नहीं करना जाओ, क्योंकि 100 लोग हैं मार्केट में जो कर सकते हो। आई रेडी का भाई? अब वो 2 महीने आपको मैनेज करना है, मेरे को ये चारों चीजों को पैसा देना है, तो उस दिन मैं ये निकाल के नहीं बैठ सकता ना, ये नहीं मैं दुबई जाने वाला था, नहीं मत जा, पहले पैसा दे दो। आई रेडी का भाई? तो वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कहीं पे भी अपने ये नहीं बोल रहा है कि आप अपने जेब में कितना पैसा लेके जाओ, वैसे बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस इज चैरिटी। आप पैसे बना रहे हो और आप सबको पैसे दे रहे हो। कल को यहाँ पे सपोज 1 लाख रुपया मैं लेने लग गया, for some reason somehow we built an 1 लाख रुपया हो गया, and now I feel कि मेरे को बिजनेस एक्सपैंड करना है, तो ये कॉस्ट अब बढ़ जाएगा, ये कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, ये कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, ये कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, तो मैं अगेन जीरो पे आ रहा हूँ। अब मैं रुक नहीं सकता हूँ कि नहीं मैं रात में कुछ इससे ही चल रहा हूँ, तो फिर मैं एक जॉब कर रहा हूँ।
Are you getting my point? तो एवरी स्टेप अगर इधर उधर को बढ़ाना तो ये कम होगा। वो साइड से लगता है सॉर्टेड है, पैसा ही कुछ नहीं है, बढ़ जाता है। Are you getting my point? तो यहाँ पे जो भी बिजनेस फैक्टर है ये आपको कल, क्योंकि you are the leaders of tomorrow, you have to understand यहाँ पे money is the last thing which you are thinking for yourself. Money is the first thing you are thinking because business उसके बगैर नहीं होगा, but for yourself you are thinking at the last. And if you are ready to do it day in day out, तो बेस्ट जगह है, otherwise you can't survive. Key partners क्या होता है? Strategic alliance. Are you guys aware? Toyota and Suzuki did a strategic alliance. और Toyota का नया गाड़ी आया ग्लैंजा। तुम लोग दुनिया में रहते हो कि बाहर रहते हो? Toyota ग्लैंजा पता है? बलेनो पता है? मारुति बलेनो पता है? सुजुकी बलेनो? ग्लैंजा इज बलेनो, बस चेंज हुआ है लोगो और नाम। और उसकी जगह पे जो हाई क्रूजर आया सुजुकी का, वो टोयोटा। Because in 2019 they did a deal, क्योंकि टोयोटा बड़ी गाड़ियां बनाती है, इनोवेटिव गाड़ियां बनाती है, छोटी गाड़ी सेगमेंट में कुछ है नहीं। मारुति छोटी गाड़ी बनाती है, कंफर्ट गाड़ी बनाती है, उसके बाद बड़े सेगमेंट में कुछ खास था नहीं, तो they did a deal. They gave them their best seller, Baleno. They gave their best seller in Japanese market, that is high cruiser. And उन्होंने क्रॉस इंटरचेंज किया, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सुजुकी कर रहा है जापान टोयोटा का, और मैन्युफैक्चर टोयोटा कर रहा है सुजुकी का। गाड़ी दोनों की है, बस नाम रीब्रांड होके मार्केट में है। दैट्स अ स्ट्रेटेजिक अलायंस। इससे टोयोटा पेनिट्रेट करेगा 5 सीटर कार मॉडल मार्केट में, एंड मारुति विल पेनिट्रेट इन द 7 सीटर। दैट्स कॉल्ड स्ट्रेटेजिक अलायंस। जैसे हीरो होंडा, वो दैट वाज नीड ऑफ द आर देन, बिकॉज़ आप 100% यहाँ पे डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, यू नीडेड एन इंडियन पार्टनर, बट आल्सो बिकॉज़ दे हैड टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस, तो हीरो होंडा में दो डिफरेंट बिजनेसेस काम कर रहे हैं। सो दैट्स अ स्ट्रेटेजिक अलायंस। सेकंड इज कोऑपरेशन। कोऑपरेशन है द मिस्टेक वर्ड, competition, it is called strategic partnership between partners. Are you aware Pepsi का एक बार मॉडल चोरी हो गया, फॉर्मूला। पेप्सी और कोक एक फॉर्मूला बना, तो वो फॉर्मूला एक बार चोरी हो गया, and 2 guys reached Coca-Cola and they said we need $10 million, we'll give you this and you will start making it, and सब virtually बात हो रहा था, and on the day जहाँ पे डील होने वाला था, कोक ने अपने कुछ फेक एक्टर्स को भेजा एज एम्प्लॉइज, एंड ये लोग से बात करने नहीं बोला था कुछ भी, उनसे बस उनका पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालने बोला था अबाउट दोस 2 guys, and then they brought in the feds and उन लोगों ने उनको हैंड ओवर। Coca-Cola did not get to take the form. Now this is a good thing, आपको समझ में आ रहा है कि वाह बिजनेस अच्छा करते हैं वो लोग, उनको फालतूगिरी नहीं करना। But you are not aware that Coke and Pepsi are running the market. That's not a war, that's an alliance, जो आपको पता ही नहीं। That's a दोस्ती from behind जो मार्केट में प्रेजेंट किया जाता है। You tell me. Today you use अब I, EYE वाला I होता है ना, but when you say apps I together तो I जो है वो AI जैसा साउंड होता है, ठीक है? अब apps I था क्या? Analysis of financial statement through artificial intelligence. Analysis of financial statement through artificial intelligence. कुछ नहीं करना। Idea was very simple. आप एक ऐसा algorithm build करो जो over the period past data को feed करते जा रहा है constantly, and उसके through उसके अंदर एक sense आ जाएगा कि what patterns are right, what patterns are wrong. तो किसी भी कंपनी का information आपको use figure out करने की, इसमें invest करना है कि नहीं करना है, तो आप मेरे सॉफ्टवेयर में बस उस कंपनी का नाम डालो। इनिशियली पहले आपको उसका information plot करना पड़ेगा मतलब ऑनलाइन अवेलेबल, आपको बस कॉपी पेस्ट करना है उसका एक्सेल। Eventually, idea was that you put the name and automatically आ जाएगा, and once analyzing the figures, वो आपको एक chart देगा, sort of a chart with all the important factors for a business, profit and loss, revenue, PAT, EBITDA ratio सब देगा, and उसके बाजू में red और green देगा, because जरूरी नहीं है ना कि हर कोई financial student यूज करे, red भी हो सकते हैं, green भी हो सकते हैं, red is not good, green is bad, sorry green is good, red is bad, वो इंडिकेटर देगा और एंड में आपको सजेस्ट करेगा कि कैन इन्वेस्ट करो। वेरी सिंपल बेसिक आइडिया, उसके ऊपर मैंने बहुत काम किया, उसका नाम रखा, कंपनी फॉर्म किया, 3 लोग थे हम लोग,
एक बंदा आईटी का था, उसने पूरा कोड वोड बिल्ड किया, हम लोग ने स्क्रैप किया इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन, वी स्टार्टेड यूजिंग इट, स्टार्टिंग में 20% एक्यूरेसी था, तो वो वैसे ही स्टार्ट होता, देन यू हैव टू कॉन्स्टेंटली यूज इट, पुट वी रीच्ड टिल 75%। ये कॉलेज के टाइम पे हो रहा है, जब मैं खुद पढ़ रहा उस टाइम का बात है, मैं निकला नहीं था एमबी से बाहर, तभी कर रहे थे हम लोग, और 75% तक पहुंचा, एंड देन शायद से मैं बाहर गया या कोई तो बाहर गया ट्रिप के लिए कुछ, एंड देन वो फिजल आउट। वो आज भी सिस्टम मेरे घर पे पड़ा हुआ है, मेरे लैपटॉप में उसका कोड वोड सब पड़ा हुआ है, बट आज तक काम नहीं हुआ उसमें, आज तक काम नहीं हुआ। एंड 2 साल पहले एक कंपनी आ गई सेम, 2 साल पहले एक कंपनी सेम आ गई मार्केट में, वो सेम कंपनी। आई वाज प्रीटी श्योर मैं अगर वो प्रोटोटाइप किसी को दिखा तो आई वुड हैव गॉट एन इन्वेस्टमेंट आल्सो एंड एवरीथिंग, probably eventually ET or money control could have bought us also. The idea was simple कि कुछ ऐसा बनाओ जो मार्केट में everyone is happy. See, copy करना is good sometimes. You have to understand किसको copy करना। Elon Musk ने क्या किया, कुछ बनाया, वैल्यू बिल्ड किया, बेच दिया, पैसे आ गए, अब उसके एक्चुअल सपने पे काम कर रहा है, आप उसको भीख नहीं मांगना, तो आप भी वो कर सकते हो। तो आइडिया वाज वेरी सिंपल कि बिल्ड करो, चलाते हैं, कुछ चला तो चला, नहीं चला तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक जो आईटी वाला बंदा था, वो एक्चुअली उसके कॉलेज में उसने ये प्रोजेक्ट में भी दिखाया, क्योंकि वो इसी में काम करता था, उसके पास प्रोजेक्ट कुछ था नहीं, तो उसने ये दिखाया कि आप लोग इस पे काम कर रहे हैं, उसको ही गॉट गुड मार्क्स। इट्स स्टिल देयर इन माय कंप्यूटर, बट 2 years बैक दैट सेम कंपनी केम, नाउ इट्स अ कॉपी, नाउ इट्स अ कॉपी। अब मैं किसी को दुनिया की कोई भी स्टोरी, मैं इसलिए उस पे काम नहीं करता हूं, अब मैं कुछ भी स्टोरी बता दूं, कोई नहीं मानेगा, आई वेटिंग हो, तो वो एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट, वो एवरी डे व्हेन यू लेटर में मिल जाए, अरे यार वो लिटरली देयर यूज्ड टू बी डेज, वो 60 से 65 जाने में उसने 6 महीने लगे, 20 से 60 इट केम इन 3 days। फिर उसके बाद डेटा दे, हमारे पास डेटा ही नहीं मिलता था हमको, इतना जितना उसको डेटा देना पड़ता था, फिर कुछ बग आ गया, फिर वो उस पे काम कर रहा है, और 2 लोग थे फाइनेंस के, एक बंदा आईटी का था, तो अब वो अकेला बेचारा उस पे काम कर रहा है, उसको कॉलेज भी देख रहा है, तो प्रोसेस और स्लो, 6 महीना तक वो 65 हो गया, एंड एवरी डे इट यूज्ड टू बी लाइक क्या है। एंड जिस दिन 20 से 60 हुआ, एवरीवन वाज सुपर हैप्पी, अरे कल तो बेच देंगे इसको, और इतने करोड़ मिलेंगे हमको, और ये करेंगे और वो करेंगे, यार एक पार्टी तो बनता है, क्या क्या चल रहा। और फिर वो फर्स्ट मंथ गया, सब लोग बोले करने का कैसे, शुड वी कंटिन्यू इट और नॉट, एंड इससे 60 पहुंचा, एंड 60 के बाद 75 अगेन वन डे में पहुंच गया, एंड 75 पहुंचा तो ऑफ कोर्स वी वर वर्किंग फॉर क्वाइट ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स उस पे कॉन्स्टेंटली काम करते, एग्जाम खत्म हो गया, ठीक है चलो चिल करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, वरना नो ये सब मॉडर्न आइडियाज जो है आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा, और आप बर्न आउट हो जाओगे, आप बहुत काम कर लोगे, तो ये सब वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स है, तो वो छोड़ दिया, और फिर वो छूट ही गया, वो बंद गया, सर मैं आई डोंट वर्क ऑन दैट, कभी नहीं करता हूं, और किसी को नहीं दिखाता हूं, तो ऐसा होता है, you will create some, और मेरे को इतना क्रेजी लगता था ना वो, I don't know how much interesting you thought, मैंने आई का ड्राइंग बहुत गंदा बनाया, but our logo was very good, वो मैंने बिल्ड करवाया था उससे, उसने बहुत क्रेजी बना दिया था। Have you guys seen a cartoon आता था एक, I forgot his name, वो एरो था उसके सर पे, टकला सा बुद्धिस्ट मॉन्क अवतार, राइट, उसमें एक फाइट सीन है उसका, जिसमें उसका स्पिरिचुअल एनर्जी आता है, his eyes gets enlightened, वो वाला आप लिया था, and it was AFS, AFSite, and वो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, and it sound it AFSite इसलिए भी रखा था क्योंकि जापानीज साउंड करता था, and Japanese tech is the best, so it was AFSite, है ना, but वो देखो अब मैं काम भी नहीं करता, करूँगा भी नहीं उसका, but that is how it is, so आपको पता भी नहीं है कि कौन कौन काम कर रहा है, और हमको लगता ही नहीं था उस पे कोई काम कर रहा है, हमको तो लगता था अरे हमारे जैसा किसी ने सोचा ही नहीं आज, एंड उसी चक्कर में प्रॉब्लम हो गया ना, क्योंकि उस पे काम नहीं हुआ, फिर 2 साल बाद कोई ऐसा हो। सो ओवरऑल इफ यू हैव एनी आइडियाज, थिंक अबाउट इट, वर्क ऑन इट, थोड़ा प्लान करो, दैट्स इट, थैंक यू। कुछ डाउट्स है तो पूछो, अदरवाइज वी विल रैप द सेशन। डाउट्स तो होगा नहीं, बस ब्रिलियंट हो आया। अब हॉस्टल को प्रथम सर को बुलाया, कॉल Just let me ask you that and then we get the shot.